آپ کو بتائیں برالر گوشت کے دام مسلسل عدم استحکام کا شکار۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں برالر کی قیمت کا تعین نہ کیا جا سکا۔ مارکیٹ میں مرغی گوشت 620 روپے، صافی گوشت 720 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ فی درجن انڈوں کی قیمت 304 روپے کی سطح پر برقرار ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، برالر گوشت کے دام عدم استحکام کا شکار ہیں اور سرکاری ریٹ لسٹ میں برالر کی قیمت کا تعین نہ کیا جا سکا۔ مارکیٹ میں مرغی گوشت 620 روپے، صافی گوشت 720 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ فی درجن انڈوں کی قیمت 304 روپے کی سطح پر برقرار ہے۔ آج قوم ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ یوم تکبیر منا رہی ہے۔ وہ دن جب اپنے دفاع کے لیے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان ایٹمی صلاحیت رکھنے والا اسلامی دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ کوئی شک نہیں کہ ایٹمی دھماکوں کے باعث اسٹریٹجک توازن برقرار رکھنے میں بھی بھرپور مدد ملی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں 13 مئی 1998 کو بھارت نے پوکھرا کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے تو بھارتیوں کا مورال ایوریسٹ کی چوٹی سے بھی اوپر چلا گیا تھا۔ بھارتی رہنماؤں کا طرز تکلم یکسر گھمنڈ اور غرور سے لتھڑا ہوا نظر آنے لگا کہ اب بھارت باقاعدہ ایٹمی قوت بن گیا تھا۔ یہ الگ بات کہ بھارتیوں کی یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے حساب برابر کر دیا۔ ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان نے خطے میں طاقت کے توازن کو بھی بحال کر دیا تھا۔ میں اس کا تھوڑا سا کریڈٹ سب لوگوں کو، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ضیاء الحق کو بیچ میں انکلوڈ کر کے نواز شریف تک، میں ان سب کو کریڈٹ دوں گا۔ اس وقت انہوں نے یہ ایٹمی دھماکہ کیا، گو ہمارے ملک کے اوپر بہت پریشر تھا، بہت سب کچھ تھا، لیکن جب انڈیا نے ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیا، ہمارے لیے یہ مست تھا کہ ہم کرتے، اور اللہ کی رحمت سے ہم نے کیا۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے جو بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اس میں بے شمار احباب کی کاوشیں شامل رہیں۔ اس وقت کی حکومت نے بھی بین الاقوامی طاقتوں کا شدید دباؤ رد کیا کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے۔ سب جانتے تھے کہ اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے نہ کیے تو ملک کی سالمیت داؤ پر لگ جائے گی۔ اگر یہ صلاحیت ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر جو اس خطے میں پاور کا بیلنس ہے وہ ٹلٹ ہو جانا تھا بھارت کی طرف۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی کنٹریز ہیں اس خطے کی، جس میں نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، وہ سارے بھارت سے خوفزدہ تھے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی اس صلاحیت پر ناز کرتے ہوئے بھارت کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بیلنس آف پاور ہے۔ بے شک ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان نے بھارت کی برتری کا غرور خاک میں ملا دیا۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاہپور کانجرا لاہور میں ملک کی سب سے بڑی ماڈل کیٹل مارکیٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کیٹل مارکیٹ کا دورہ کیا اور سہولتوں کا جائزہ لیا۔ شاہپور کانجرا ماڈل کیٹل مارکیٹ میں 25,000 بڑے اور 1.5 لاکھ چھوٹے جانور رکھنے کی گنجائش ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی آسانی کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شاہپور کانجرا لاہور میں ملک کی سب سے بڑی ماڈل کیٹل مارکیٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماڈل کیٹل مارکیٹ کا دورہ کیا اور دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیپاریوں اور خریداروں سے بات چیت بھی کی۔ لاہور کی شاہپور کانجرا ماڈل کیٹل مارکیٹ میں 25,000 بڑے اور 1.5 لاکھ چھوٹے جانور رکھنے کی گنجائش ہے۔ 74 ایکڑ پر قائم ماڈل کیٹل مارکیٹ میں مویشیوں کے لیے 20 بڑے شیڈز بنائے گئے ہیں۔ پہلی بار جانوروں کے لیے شیڈز میں پنکھے لگائے گئے ہیں۔ ماڈل کیٹل مارکیٹ میں مویشیوں کو وبائی امراض سے بچانے کے لیے قرنطینہ سینٹر بھی بنایا گیا ہے۔ بیپاریوں کے لیے 20 بڑے رہائشی کمرے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ شاہپور کانجرا ماڈل کیٹل مارکیٹ میں مسجد، ویٹرنری کلینک، ٹاک شاپ، بینک، ATM اور واش رومز کی سہولت بھی موجود ہے۔ مارکیٹ میں مویشیوں کی نقل و حمل میں آسانی کے لیے لوڈنگ، ان لوڈنگ بے اور ٹرک سینٹر بھی موجود ہیں۔ ماڈل کیٹل مارکیٹ میں وسیع پارکنگ، پولیس چوکی اور بڑے اوپن ایریا کی سہولت دی گئی ہے۔ ماڈل کیٹل مارکیٹ میں آکشن بے بھی قائم، جدید ترین سلاٹر ہاؤس بھی بنایا گیا ہے۔ پنجاب کی دوسری بڑی ماڈل کیٹل مارکیٹ جھنگ میں بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماڈل کیٹل مارکیٹ پروجیکٹ میں نمایاں کارکردگی پر شیلڈز بھی تقسیم کی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس چیئرمین سمیت 25 اراکین نے متفقہ فیصلہ کرتے ہوئے شاہپور کانجرا سمیت 5 منڈیوں کی نیلامی منسوخ کر دی۔ زیادہ ریونیو کے لیے یہ نیلامی دوبارہ کروائی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔
कैटल मैनेजमेंट कंपनी एंड डेवलपमेंट कंपनी का इजलास पंजाब की मवेशी मंडियों की नीलामी में मौसूल बोलियों का एजेंडा पेश किया गया। पंजाब की 112 मवेशी मंडियों की नीलामी की बोलियां मौसूल हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 मवेशी मंडियों की नीलामी मंसूख कर दी। लाहौर डिवीजन की मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांचरा की बोली मंसूख की गई। फैसलाबाद डिवीजन की नलका अड्डा और शोरकोट मवेशी मंडियों की नीलामी भी मंसूख कर दी गई। सरगोदा डिवीजन की बिन हाफिज जी मवेशी मंडी और बहावलपुर डिवीजन की हासिलपुर जबकि रावलपिंडी डिवीजन की दीना मवेशी मंडी की बोली भी मंसूख कर दी गई। इस ज़िमन में काबिल जिक्र बात यह है कि शाहपुर कांचरा की माली साल 2025 से 26 की बोली 1 अरब 50 करोड़ रुपए मौसूल हुई, जबकि माली साल 2024 से 25 की बोली 1 अरब 99 करोड़ की बोली मौसूल हुई थी, जो 49 करोड़ रुपए ज्यादा बनती है। चेयरमैन इब्राहिम तारिक शफी का कहना है कि मवेशी मंडी की दोबारा नीलामी करवाने का मकसद है कि पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। मंसूख की गई मवेशी मंडियों की नीलामियां 10 जून तक करवा दी जाएंगी। ईद उल अज़हा की आमद लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में रौनक के अरूज पर खूबसूरत और सेहतमंद बड़े जानवरों सबकी तवज्जो के मरकज हैं। जानवरों के मुंह मांगे दाम सुनकर शहरी परेशान नजर आए। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर की अहम तरीन सगिया मवेशी मंडी जोबन पर सगिया मवेशी मंडी में हर साइज और नस्ल के खूबसूरत जानवर सबकी तवज्जो के मरकज। मंडी में छोटे जानवरों की कीमत 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक जा पहुंची। बड़े जानवर 10 लाख से 60 लाख रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दिलचस्प नामों वाले जानवरों की खुराक और निगहदाश्त के लिए व्यापारियों के खास एहतमाम। बबलू को हमने काफ़ी नाजों से पाला हुआ है। 15 लाख हमारी डिमांड है, लोग कम रेट लगा रहे हैं, तो 15 लाख से कम नहीं सेल करेंगे। ये 6 किलो इसकी खुराक रोज़ाना की दूध पिला रहे हैं हम, और इसको खल वगैरह पा रहे हैं। ये इसको देसी खुराक ही खिलाई है, जो आम खुराक होती है, दलिया वगैरह, सूड़ी वंडी, ये वो पट्ठे वगैरह खिलाए हैं, और वैसा कुछ भी नहीं खिलाया इसको, सिर्फ देसी खुराक खिलाई है। खरीदार जेब के मुताबिक कुर्बानी के लिए मुनासिब जानवरों की तलाश में सरगर्दा नजर आए। शहरियों का कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस बार जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। पिछली बड़ी रेट बहुत कम था, ऐड की बहुत ज़्यादा है, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। जानवर का इधर ना रेट बहुत ज़्यादा है, जो हम सोच के आए थे ना उससे काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल से निस्बत भी ज़्यादा रेट है, काफ़ी ज़्यादा रेट है। जो पिछले साल हमें तकरीबन 1.5 लाख का मिल रहा था ना, वो इस बार जो सा ये 4 साढ़े 4 मांग रहे हैं उसका। सगिया मवेशी मंडी में आए शहरी शदीद गर्मी से बेनियाज अपनी पसंद का जानवर खरीद कर ले जाने के लिए जगह जगह भाव ताव करते हुए नजर आए। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सख्त फैसले। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने 10 गुना बढ़ाने का ऐलान। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकते सरिया वगैरह पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का बेदियां और दीगर रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म। इजलास में पंजाब के 372 और लाहौर के 77 पॉइंट्स की रिमॉडलिंग पर गौर। ट्रैफिक चालान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने की हिदायत। ट्रैफिक जाम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर असूली इत्तेफाक। बड़े रोड्स के इतराफ में सामान से लदी ट्रालियां खड़ी करने पर पाबंदी लगाने का फैसला। खराब या बंद हेडलाइट्स के साथ गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में ट्रैफिक पुलिस की 5 कैटेगरीज बनाने का असूली फैसला। ट्रैफिक पुलिस में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ट्रैफिक रेगुलेटर, एजुकेशन लाइसेंसिंग और पब्लिक सर्विस ऑफिसर की कैटेगरीज बनाई जाएंगी। शफाफियत के लिए ट्रैफिक वार्डन ऑन कैमरा ट्रैफिक चालान करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजलास में कहना था कि ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही, इस हवाले से ठोस इकदाम करने होंगे। पंजाब असम्बली इजलास में एक बार फिर गुंडा एक्ट की आवाज़ गूंज उठी है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बशर ने कहा, हुकूमत गुंडा एक्ट मुतारिफ करवाने जा रही है। ये एक्ट अंग्रेज दौर को वापस लाएगा। कैसे एक डीसी किसी को गुंडा करार दे सकता है। 8 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर। निजी यूनिवर्सिटी के 2 नए बिल पेश हुए। मुतअद्दिद करारदादें मंजूर। 8 तहरीकें इल्तवा कार महकमे को जवाब देने आने तक मुलतवी कर दी गई।
पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 9 मिनट ताखीर से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। रेस्क्यू 1112 से मुतालिक जवाबात देते हुए सूबाई वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, वजीर आला की पहली तरजीह है कि रेस्क्यू के जरिए अवाम की खिदमत की जाए। सारी गाड़ियाँ खराब नहीं, नई गाड़ियाँ आइंदा बजट में खरीदेंगे। ब्रिगेडियर मुश्ताक बोले, अस्मा बुखारी जवाब दें, क्या नवाज शरीफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी का हिस्सा थे? अस्मा बुखारी बोली, मैंने जेर निगरानी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। आज दुनिया मान रही है कि हमने राफेल गिराए, हम जंग जीते। नहीं मान रही तो अपोजिशन नहीं मान रही। जब डिजाइन ये किया गया तो क्या ये डिजाइन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के हुआ था? आई हैव माय फ्यू ऑब्जर्वेशंस एंड असम्पशन एंड आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड, आई एम गोइंग टू रेज दोस इशू। ये जब अप्रूवल होती है, जो भी हुआ है, इसकी प्रिलिमिनरी सिस्टम है हमारे यहाँ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, वहाँ पे डिस्कशन हुई है। इट इज़ माई सीरियस, मेरा सवाल है, वॉज द मियां नवाज शरीफ पार्ट ऑफ दोज डिस्कशंस? बिकॉज वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप पहले यहाँ डिस्कशन करें। वहाँ पे एक कंसेंसस डेवलप हुआ जिसमें सर्विसेज चीफ मौजूद थे और तमाम सिक्योरिटी के जो लोग मुतल्लिका मौजूद थे। क्या मियां नवाज शरीफ हैड दी एक्सेस टू दोज मीटिंग्स? पूरी जिम्मेदारी और पूरी दयानतदारी से कह रही हूँ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पूरे ऑपरेशन का पार्ट एंड पार्सल थे और एक इस वक्त पूरे मुल्क में उस स्टेचर का एक ही लीडर है जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है। सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, कौन नहीं मान रहा? ये सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, कौन नहीं मान रहा? ये सारी दुनिया मान रही है, सारी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी सबसे बेहतर थी, कौन नहीं मान रहा? ये इजलास में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने जाने पर मुबारकबाद की करारदाद समेत मुतादिद करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गईं। अमनो अमान की आम बहस पर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने गुंडा एक्ट पर खूब निश्तर बरसाए। बोले, हुकूमत गुंडा एक्ट मुतारिफ कराने जा रही है, ये एक्ट अंग्रेज दौर को वापस लाएगा। कैसे एक डीसी किसी को गुंडा करार दे सकता है? हुकूमत पंजाब कैसे किसी का कार्ड ब्लॉक करेगी? नादरा तो इनके मातहत है नहीं। अपना गुंडा एक्ट के तहत जो बदमाश है उसका पासपोर्ट ब्लॉक किया जाएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ये ब्लॉक करने का अख्तियार पंजाब को है? नहीं है। हम इसको फेस कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत, हमारे पंजाब की पुलिस हमारे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए हर जगह पे लिख चुकी है, लेकिन वो वफाक के बगैर नहीं होते, वो नादरा के बगैर नहीं होते। नादरा को पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। इजलास में 8 तहरीक इल्तिवाई कार महकमा से जवाब आने तक मुलतवी की गयी। 8 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल कसरत राय से मंजूर किए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत भट्टी ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। महकमे दाखिला पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में हैरान कुन इंकशाफात। महकमे दाखिला के इदारों से करोड़ों मालियत का असला दोबारा गायब हुआ। 24 करोड़ 55 लाख का सामान गायब हुआ, ताल वसूली न हो सकी। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। महकमा दाखिला पंजाब की 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में 24 करोड़ 55 लाख से जायद मालियत का सामान गायब होने का इंकिशाफ हुआ, जिसकी ताहाल वसूली न हो सकी। 2021 से 23 के दौरान डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर से 8 करोड़ से जायद का असलहा और बारूद गायब हुआ। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के दफ्तर से 4 करोड़ 71 लाख से जायद मालियत का असलहा और गोलियां गायब हुई। पुलिस ऑफिस लाहौर से 4 करोड़ 68 लाख से जायद मालियत के गायब असलहे की रिकवरी न हो सकी। सीपीओ मुल्तान के दफ्तर से 74 लाख मालियत की राइफलें और गोलियां गायब हुई। ऑडिट रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया कि 2009 के दौरान सेंट्रल जेल लाहौर के मुख्तलिफ अफसरों को दी गई राइफलों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। डीपीओ सियालकोट के दफ्तर से 56 लाख 14,000, डीपीओ साहिवाल के दफ्तर से 43 लाख, डीपीओ ओकाड़ा के दफ्तर से 38 लाख से जायद मालियत का असलहा और सामान गायब हुआ। डीपीओ गुजरात के दफ्तर से 35 लाख और डीपीओ फैसलाबाद के दफ्तर से 26 लाख से जायद मालियत के असलहे का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। नूरुल अमीन मेंगल इंक्वायरी का हुक्म देते हुए एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल महकमा दाखिला इंक्वायरी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी 10 यौम में ऑडिट रिपोर्ट में दी गई बेज़ाब्तियों पर जवाब जमा कराएगी। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।